Hello, aspiring civil servants. I am Smriti Agrawal and I'll be taking your polity revision session for the upcoming prelims examination. So, before I start with the revision session, first of all, I'll tell you why should you watch this series. See, I'll tell you the reasons one by one. See, first of all, I'll be explaining the important prelims related chapters of polity in very less time. Also, I'll give you short notes for the same so that you can easily and quickly revise them. I'll try to establish a linkage between the PYQs and the topics that I'll be explaining and also the current affairs related. Like, for instance, election is in news right now. So the chapters like Election Commission of India or election per se is very important for this prelims. So I'll give utmost importance to them while explaining. Accordingly, I'll also share some important tips and tricks or say some shortcuts for longer retention. Apart from that, I think the most important thing during the prelims examination is confidence. And I think if you go through these lectures, you will definitely gain confidence. And I'll tell you how. See, first of all, I'll be explaining and all these will be in your fingertips because I'll give you some shortcuts so that you could retain it for longer time. Apart from that, I'll ask you to write answers in comments which will boost your confidence. Also, in between the sessions, I'll take some random question answer session that would help you again boost your confidence. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल से. प्रियम्बल वर्ड बाय वर्ड आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं एक बार स्पीड में आपके लिए पूरा प्रियम्बल पढ़ ले रही हूँ. आप भी इसे जितनी बार हो सके बस आप इसे याद रखना वर्ड बाय वर्ड. ये आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा. सो बेसिकली प्रियम्बल क्या बोलता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, कौन सा? social, economic and political, liberty of what? of thought, expression, belief, faith and worship, equality, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity. Fraternity assuring what? Dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर से याद करना. इसके बाद हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं. तो प्रियम्बल का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? ये जो पीपल ऑफ इंडिया है ये बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. अपार्ट फ्रॉम इट प्रियम्बल हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है जो कि है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक. प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव्स बताता है जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रियम्बल डेट ऑफ अडॉप्शन बताता है दैट इज़ 26 नवंबर 1949. इसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ट्रिक्स. जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इसको आप जलेबी से रट सकते हो. जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी. जलेबी में बी या उसको जलेफी कर दीजिए या बी से ब्रदरहुड भी होता है और आई तो ऐसे ही है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसके लिए एक ऐसा छोटा सा ट्रिक है. अगर आप ये
ठीक लगे आपको तो आप इसे याद करो, नहीं तो अगर आपके पास कुछ और ट्रिक है तो आप वैसे याद कर सकते हो। उसके लिए ऐसा है कि आप जलेबी खा रहे हो, आपको डॉक्टर ने देखा तो आप एकदम से चुप हो गए। ये डॉक्टर से हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और आप जो ये हुए, ये इससे आता है सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर। ये आपके ऊपर है, आप इसे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास अपना कोई से शॉर्टकट है तो आप वैसे याद कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं इस प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है। प्रियम्बल को बोला जाता है ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई बोलता है इसको समरी या फिर फिलॉसफी है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई बोलता है कि ये रिफ्लेक्ट करता है विजन या ड्रीम या एस्पिरेशन या फिर माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अब ये जो मैंने डबल स्टार दिया है, इट इज़ बिकॉज ये PYQ में आ चुका है। आप जब गो थ्रू करोगे ना इस PDF से, तो आप देखना जहाँ डबल स्टार है मतलब वो PYQ वाला क्वेश्चन है। तो अब क्या है, लास्ट टाइम PYQ में पूछा गया था, ऑप्शन में था प्रियम्बल, DPSP, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, और पूछा गया था इन चार में से कौन सा है जो रिफ्लेक्ट करता है माइंड ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। तो करेक्ट आंसर था प्रियम्बल। तो इससे रिलेटेड ही मैंने आपको बाकी भी बता दिया। अगर पूछा जाए इस बार कि आइडेंटिटी कार्ड क्या है या फिर समरी एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा डिपिक्ट करता है, तो आप प्रियम्बल चूज़ करोगे। वैसे ही प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है या फिर बीकन ऑफ लाइट फॉर जुडिशियरी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में आ जाते हैं, जैसे कि जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये दो तो बेसिक चीज़ था, आपको याद रह जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर लेजिस्लेचर से रिलेटेड देखा जाए तो प्रियम्बल ना ही सोर्स ऑफ पावर है, ना ही उनके लेजिस्लेचर के पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है। मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल में इतना पावर नहीं है, वो ना ही लेजिस्लेचर को कोई पावर दे रहा है, ना ही उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रियम्बल किस पे बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है प्रियम्बल, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब आते हैं अमेंडमेंट के ऊपर। प्रियम्बल आज तक बस एक बार अमेंड हुआ है। कब हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, और उस अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ है, सिस ऐड हुआ है, सिस, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेक्युलर। ठीक है, अब आप याद रखना ये जो सिस है इसमें S फॉर एक S है सोशलिस्ट से और एक S है सेक्युलर से, सोवरेन नहीं। ठीक है, ये आप बेसिक मिस्टेक कर सकते हो बट ये नहीं है। S फॉर सोशलिस्ट, एक S सेक्युलर, ये तीन वर्ड्स बाद में ऐड हुए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स से रिलेटेड। पहला है सोवरेन। सोवरेन मतलब क्या होता है, जो सोवरेन जो है ये हमारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट दिखा रहा है। तो अगर हम बोल रहे हैं इंडिया सोवरेन है, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट है, वो किसी डोमिनियन में नहीं आता है। अभी सोवरेन में इंटरनल सोवरेन होता है, एक्सटर्नल सोवरेन होता है। इंटरनल सोवरेनिटी मतलब हम अपना रूल बना सकते हैं, हम अपना लॉ बना सकते हैं। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं या सीड कर सकते हैं अपना कोई टेरिटरी। अब अगर हम कॉमनवेल्थ नेशंस में मेंबरशिप है हमारा, और अगर हम UNO के भी मेंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम डिपेंडेंट हैं। हम अपना सोवरेनिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। ये सब मेंबरशिप हमारा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इससे कोई भी तरीके से हम अपना सोवरेनिटी थ्रेटन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड वाले टर्म पे, वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। अभी ऊपर में मैंने आपको बताया था सिस। अभी सोशलिज्म में आपको याद रखना है कि हमारा इंडियन सोशलिज्म है या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है या फिर फेबियन सोशलिज्म है। ये सोशलिज्म क्या बोलता है, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अनलाइक स्टेट सोशलिज्म जहाँ पर सब पब्लिक प्रॉपर्टी होता है या फिर स्टेट सुप्रीम होता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में। और ये जो सोशलिज्म है ये तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाद में आया है, लेकिन जो हमारा DPSP है
उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो दिखाते हैं कि ये चीज़ इम्प्लिसिट है। कैसे इम्प्लिसिट है? सोशलिज्म क्या बोलता है? पॉवर्टी नहीं होना चाहिए और ऐसे ओवरऑल भलाई का बात करता है। तो डीपीएसपी में है, लाइवलीहुड का एक है आर्टिकल जो बताता है राइट टू लाइवलीहुड, उसके बाद इक्वल पे का बात करता है। तो ये बेसिकली ये सब सोशलिज्म से रिलेटेड है। अब आता है सेक्युलर। जो वर्ड सेक्युलर है ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, वही सिस में जो दूसरा एस है। अब सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ पर इंडियन सेक्युलरिज्म है, जिसको पॉजिटिव सेक्युलरिज्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है। और ये बाद में आया है, तो इम्प्लिसिटली पहले जो है फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे 25 to 28, जो इम्प्लिसिटली बताता था कि हमारा इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अभी भी है वो राइट्स, बट अब इसे हमने 42nd अमेंडमेंट से एक्सप्लिसिटली भी लिख दिया है। फिर आता है डेमोक्रेटिक। तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब होता है कि पीपल सुप्रीम होते हैं। इसमें आपको अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन भी अगर याद हो, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी है। तो इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और ये हमें कैसे पता चलता है? इलेक्शन होता है हमारे यहाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, रूल ऑफ लॉ है, ऐसे करके ये सब बताता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है रिपब्लिक, इंडियन स्टेट, ठीक है। तो हमारे इंडियन स्टेट जो है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक मतलब हमारे यहाँ पर मोनार्की नहीं है, दैट इज़ हमारे यहाँ पर कोई प्रिविलेज क्लास नहीं एग्जिस्ट करता है, और जितने पब्लिक ऑफिस हैं वो सबके लिए ओपन है। और इसका एक एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होते हैं। अब जो इंडियन रिपब्लिक है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो इंडिया में वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। यही चीज़ आप यूएस में देखोगे तो वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें उन्होंने पूछा कि कोई एक सेंटेंस होगा जिसमें लिखा होगा कि रिपब्लिक मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है, तो वो राइट है। पर अगर पूछ रहा है इंडियन रिपब्लिक के बारे में, स्पेसिफिकली अगर मेंशन है इंडियन रिपब्लिक, तो उसमें होगा, अगर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, तो अगर इंडियन रिपब्लिक के बारे में पूछ रहा है तो आपको इनडायरेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जस्टिस के ऊपर। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए हम लोग। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला है जस्टिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और ये जस्टिस वर्ड हम कहाँ से लाए हैं? रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं लिबर्टी के ऊपर। लिबर्टी हम कहाँ से लाए? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एब्सोल्यूट लिबर्टी का बात नहीं करता है, वो बात करता है क्वालिफाइड लिबर्टी का। क्वालिफाइड लिबर्टी मतलब कि उसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। जो लिबर्टी मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, लेकिन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं होता है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होता तो हमारा एब्सोल्यूट हो जाता, और हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, हमारा क्वालिफाइड है। इसका मतलब कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट के साथ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब ये जो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट है या फिर आपको जो लिबर्टी मिला है, इसलिए मिला ताकि आप रियलाइज़ कर सकें, आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके कि आप अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज़ कर सको। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी ऑफ क्या क्या दिया हुआ है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। डबल स्टार दिया मतलब ये PYQ में आ चुका है, तो ये आपको याद रहना चाहिए क्या क्या का दिया हुआ है। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है। याद है ना ट्वाइलाइट का एक था द ब्रेकिंग डॉन, तो उससे मैंने द ब्रेकिंग फॉन कर दिया है। अब वो आपको ऊपर आप कैसे याद करो, जिसमें द, ये T से थॉट, E से एक्सप्रेशन, B से बिलीफ, FA से फेथ, W से वर्शिप, द ब्रेकिंग फॉन। ये सारे लिबर्टी के 5 ही हैं। अगर आप डायरेक्टली रट सकते हो तो वेल एंड गुड। अभी ये जो लिबर्टी है इसमें पॉजिटिव लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी है। जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो बेसिकली क्या बताता है कि आपको इतना फ्रीडम मिल रहा है कि आप
रियलाइज़ कर सको अपना फंडामेंटल पर्पस को। ये होता है पॉजिटिव लिबर्टी। फिर आता है एक नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली बोलता है एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स या कोई भी रिस्ट्रेन, बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस का बात कर रहा है वो, ठीक है। अब आते हैं इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी क्या बोलता है? पहले इक्वालिटी कहाँ से आया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से अभी हमने पहले ऊपर पढ़ा था लिबर्टी भी आया है, फिर अभी पढ़ा इक्वालिटी भी आया है, और अभी आप नीचे पढ़ोगे फ्रेटर्निटी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है। ये तीनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। और जो इनसे पहले था जस्टिस, वो आया है आपका रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है। अब इक्वालिटी प्रियम्बल में लिखा है इक्वालिटी ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। अब इक्वालिटी आप देखोगे रिजर्वेशन से आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है। अब इक्वालिटी 3 टाइप का होता है, सिविक इक्वालिटी भी होता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी होता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी। सिविक इक्वालिटी बेसिकली है कि सिटीजन्स के सामने इक्वालिटी रहना चाहिए, दैट इज़ उनके बीच में नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन उनका रेस, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बीच में उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सब सिविक इक्वालिटी दिखाता है। जब इकोनॉमिक इक्वालिटी का बात आएगा तो जैसे हम लोग का इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क या फिर राइट टू लाइवलीहुड जो आपके DPSP में है, वो सारे इकोनॉमिक इक्वालिटी में आ गए। फिर ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, ये बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर आ गया कि हाँ चलो सबको वोटिंग का अधिकार है, तो इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी पता चल गया। अब हम लोग आते हैं फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो फ्रेटर्निटी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है, मैंने ऊपर बताया था, बाकी 2 भी आए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। प्रियम्बल में दिया है फ्रेटर्निटी एंश्योर करेगा क्या? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दूसरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अभी ये जो वर्ड इंटीग्रिटी अगर आपको याद हो सिस, तो ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसमें जो 3 टर्म्स दिए, इसमें जस्टिस नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में जस्टिस नहीं है, कंफ्यूज मत होना आप। तो इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो 3 टर्म्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों को मिला जुला के एक सेंस में रखना है। मतलब इन 3 टर्म्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप लिबर्टी दे दो इक्वालिटी ना दो, इक्वालिटी दे दो लिबर्टी ना दो, ऐसा नहीं हो सकता। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मस्ट गो टुगेदर। ये है यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि पार्ट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसके पीछे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बेरुबारी, केशवानंद भारती। आप बस ये जान लो कि यस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो बेरुबारी जजमेंट था वो बोला था कि नहीं, प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पर जो केशवानंद भारती जजमेंट था, जो कि फेमस है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, उसमें बोला गया था यस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? यस, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। डबल स्टार क्यों है? PYQ में एक क्वेश्चन आ चुका है कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। अब अमेंडमेंट, प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगेन प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, ये भी केशवानंद भारती जजमेंट में पता चला था, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। अब सपोज़ आप कंफ्यूज हो गए हो और आपको याद भी नहीं है कि प्रियम्बल अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आपको सिस तो याद है, आप तो पढ़े हो सिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया है। तो अगर सिस याद है और ये अमेंडमेंट से आया, इसका मतलब कि प्रियम्बल अमेंड हो सकता है ना। तो ऐसे कभी कभी लॉजिकली भी सॉल्व करना। अब हम आते हैं कुछ और चीज़, जैसे ऊपर मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया, तो इंडिया क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब मैं आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताती हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल के पास खुद के पास बहुत पावर होता है। डेमोक्रेसी में तो पावर होती है पीपल के पास, पर इंडिया में क्या है? देखो मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और फिर
वो जिनको हम इलेक्ट करते हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, वो फिर चलाते हैं देश को। लेकिन ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसमें पीपल चलाएंगे, पीपल डायरेक्टली वोट करेंगे। ठीक है, इसके 4 डिवाइसेस होते हैं, 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या करेंगे, जो प्रपोज लेजिस्लेशन एक होगा जो हम लोग पीपल को रेफर करेंगे। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे, आपको इजी होगा। इनिशिएटिव में क्या होगा, लोग खुद से इनिशिएट करेंगे, एक बिल खुद लोग प्रपोज करेंगे, तो ये हो गया इनिशिएटिव। रेफरेंडम में क्या हुआ, एक लेजिस्लेशन लोगों के पास लाया गया, उनके डायरेक्ट वोट के लिए उनको रेफर किया गया। ठीक है, रिकॉल मतलब होता है किसी चीज़ को रिटर्न लेना। तो इसमें रिकॉल में क्या होता है कि लोग ने जो वोट किया है, वोट करके किसी ऑफिसर को लाए हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस ऑफिसर को रिमूव कर सकते हैं उसके टर्म के एक्सपायरी से पहले। ये हो गया रिकॉल। एंड फाइनली आता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट में क्या होगा, हम लोग ओपिनियन जनरेट करेंगे, पब्लिक कोई इशू होगा पब्लिक इम्पोर्टेंस का, तो प्लेबिसाइट के थ्रू लोगों का जो ओपिनियन है, ओपिनियन ऑफ पीपल, ये जनरेट किया जाएगा। अब प्लेबिसाइड और रेफरेंडम दोनों ही इक्वल साउंड करते हैं, ऑलमोस्ट सेम लगेगा आपको, पर डिफरेंस क्या होता है, प्लेबिसाइट में आप ऐसे जनरल ओपिनियन ले रहे हो, लेकिन रेफरेंडम में जब आप पीपल को बोलोगे वोट करने के लिए, तो इससे क्या होगा, वो चीज़ लॉ बन जाएगा। ठीक है, अब फाइनली आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये ऊपर का अच्छे से समझ गए हो सेशन को, तो आप बस ये 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। पहला, इंडिया का स्टेटस 1950 में क्या था? एक हिंट दे रही हूँ, इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस है डॉक्टर, दैट इज डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। ये इंडिया का प्रेजेंट स्टेटस है। मैं पूछ रही हूँ आपसे इंडिया का स्टेटस 1950 में, ये PYQ भी है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जस्टिस जो ऊपर मैंने बात किया है, जो मैंने आपको बताया था, कौन से रेवोल्यूशन से आया है? रशियन रेवोल्यूशन से। याद रखना, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं आया है। ये जस्टिस जो है, ऊपर में कौन कौन सा जस्टिस मेंशन्ड है? अगर आपने प्रियम्बल अच्छे से याद किया है तो आप बता दोगे कि प्रियम्बल में कौन कौन से जस्टिस मेंशन किए हुए। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कमेंट, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपको याद भी रहेगी चीज़ें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर दिस सेशन and I'll come back soon with the next chapter in this series. Thank you so much.